shall we turn to the third epistle of John. अब हम यूहन्ना की तीसरा खत जो है वो हम देखेंगे। And we will all together read verse 2. यूहन्ना का तीसरा खत बाब नंबर 2 हम पढ़ेंगे All together. हम सब मिलकर। Beloved, हे I wish प्यारे, above all things मैं that thou ये mayest दुआ करता हूँ कि prosper जिस तरह and तू be in health, अपनी even as तरक्की thy कर, soul इसी तरह तू prospereth. सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। And secondly, Psalm 1 और दूसरी बात हम पढ़ेंगे मज़ामीर की किताब बाब नंबर 1 and verse 3. मज़ामीर की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 3। This verse also shall we all read together. इस बाब को आयत को भी हम सब मिलकर पढ़ेंगे। And he shall be like a उस दरख्त tree की planted मानक by the होगा जो rivers पानी of की water नदियों के that पास bringeth लगाया forth his गया है, fruit in जो his अपने वक्त season. पर फलता His है leaf also और shall उसका not पत्ता wither, भी नहीं and मुरझाता। whatsoever it सो doeth जो shall वो prosper. उसको करे And ताजा finally, होगा। book of Nehemiah and chapter 2 और आखिरकार हम पढ़ेंगे नहमिया की किताब बाब नंबर 2 and verse 20. और आयत नंबर 20। Nehemiah chapter 2 नहमिया की किताब बाब नंबर 2 and verse 20, please. बाब 2 और आयत 20 All together again. सब मिलकर पढ़ेंगे। Yes. तब मैंने जवाब देकर उनसे कहा, आसमान का खुदा The वही God of हमको heaven will prosper कामयाब us. करेगा। Therefore, we इसी which सबब serve से us हम जो उसके will arise बंदे and हैं build, but we उठकर have no तामीर portion करेंगे, and our right लेकिन यरूशलेम nor में memorial तुम्हारा ना in तो कोई हिस्सा Jerusalem. ना हक ना यादगार है। Shall we pray? दुआ करेंगे। Father, we thank you for the joy you would give to us, and this is a fullness of joy, nowhere else but in your presence alone, as David by experience testifies. Thank you for the honor and privilege given to us to join the worldwide worship that is going on, even in Yehovah Shammah, to bring our worship in the light of the word of God. We believe, Lord, thou hast heard, and thou art pleased and accepted our few and broken words of worship. Now, O Lord, before we take part in the Lord's table, as we look into your word for a brief while, pray that thou will speak to us, cause your voice alone to be heard. Thou will speak to us from thy throne of grace. Grant your grace to both of us as we stand as your unworthy vessels before thy precious people here and also those who are joining online. Make our time profitable and edifying. For we ask all this with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior, the Lord Jesus Christ. आमीन। Amen. Some of you know and some of you may be wondering what these three verses that we read together. आप लोगों में से चंद लोग ताज्जुब करते होंगे कि ये 3 आयतें क्या हैं जिन्हें हमने अभी पढ़ी है। Some must be knowing it. कुछ लोग जानते भी होंगे। If you see those verses there as you enter into the door, आपको दरवाजे के अंदर आते वक्त अगर वहां उन आयतों पर अगर आप जरा गौर फरमाएं, we have all these three verses in the last card that is there. वहां पे आखिरी कार्ड जो वहां रखा गया है उस पे ये 3 आयतें लिखी गई हैं। These are the three verses the Lord has given to us. ये 3 आयतें खुदा ने इस साल के लिए हमारे वास्ते दिया है। And these are the three verses the Lord has given to us here as a church in Yehovah Shammah. और यहोवा शम्मा में जो इक्लेसिया बनकर हम इकट्ठे होते हैं, हमारे वास्ते भी खुदा ने ये 3 आयतें इस साल के लिए दिया है। And as we all know, these are called as all three put together motto. और इन 3 आयतों को मिलाकर हम जो छापते हैं उसे मोटो कहते हैं। And the Lord gave this burden and vision to the man of God, Brother Buxing, in the year 1941. और खुदा ने खुदा के बंदे भाई भक्त सिंह जी को 1941 में ये बर्डन जो बोझ है वो दिया था। And there is a question why instead of one verse or two verses, three verses are given. कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं कि 1 या 2 आयतों की जगह में 3 आयतें क्यों दी जाती हैं। The explanation for that is, इसका एक्सप्लेनेशन ये है, we find in the book of Ecclesiastes, हम देखते हैं कि वाइस की किताब में a threefold cord cannot easily be broken. वहां लिखा हुआ है कि 3-fold कॉर्ड जो होता है उसे आसानी से हम तोड़ नहीं So सकते हैं। number 3 is very effective. इसीलिए नंबर 3 जो होता है बहुत असरदार होता है। So the Lord burdened his servant to pray and wait on the Lord and to get these three verses. इसीलिए खुदा ने अपने खादिम को ऐसा बोझ दिया था कि खुदा पर इन्हिसार करे और 3 आयतें कलाम में से निकालें। I myself have been aware of this practice
ever since I was about 10 or 11 years old. जब मेरी उम्र 10 या 11 साल थी, उस वक्त से ही मुझे ये प्रैक्टिस जो है, इस प्रैक्टिस से मैं वाकिफ हूँ। Now I'm 72 years old. अब मेरी उम्र है 72। So from then I've been observing and seeing and hearing all this. तब से लेकर अब तक मैं देखते आ रहा हूँ और इस प्रैक्टिस को देखते सुनते आ रहा हूँ। This man of God was not just getting these verses simply like that. ये खुदा का बंदा जो भाई बख्श सिंह जी थे, उन्होंने इन आयतों को यूं ही अपनी मर्जी के मुताबिक निकालते नहीं थे। He would even wait for days together in fasting prayer. और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इन आयतों को निकालने के लिए कलाम से देने के लिए बहुत दिनों तक फास्टिंग प्रेयर करके ये आयतें देते थे। And that is why those promises were very encouraging, very comforting and very strengthening. इसीलिए ये आयतें जो होती हैं, ये बहुत हौसला अफजाई, रूह अफजाई और रूहानी तरक्की बख्शने वाली आयतें होती हैं। And they were being fulfilled over the past so many years. और अब तक बहुत सारे सालों से ये वायदे एक्लीसियाओं में बहुत फायदेमंद होती आई हैं। Even though he's away for the past 25 years to be with the Lord. और तकरीबन 25 सालों से खुदा के सामने वो चले गए। This burden has been passed on to the God servants after him. 25 सालों से वो खुदा का बंदा भाई बख्श सिंह जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिस उन्होंने शुरू किया था वो हमारे साथ अभी भी जिंदा है। So the men of God also have been waiting on the Lord and receiving these promises. उनके बाद खुदा के बंदे बाकी लोग भी खुदा के पास आकर खुदा पर इन्हिसार करते हुए ये वायदे दुआ के साथ निकाल के देते हैं। And they are not just given to us to hang it upon our walls. और ये वायदे जो कलाम जो दिया जाता है, ये सिर्फ दीवारों पर या दरवाजों पर लटकाने के लिए ही नहीं। It is called as a motto card. इसे मोटो कार्ड कहा जाता है। They are called as promises as a motto. और इन वायदों को मोटो बनाकर साल भर के लिए दिया जाता है। What is the meaning of motto? मोटो का मतलब क्या होता है? It places before us a name, a goal and also a purpose. मोटो क्या करता है? हमारे सामने एक निशान या एक मंजिल खड़ा करता है। And this motto motivates us. और ये मोटो जो होता है हमें मोटिवेट करता है। That is why the Lord gives these precious promises to us. इसीलिए खुदा ने ये बहुत अच्छे बेशकीमत वायदों को कलाम में से हमें देता है। So we need to claim it and also make it as our motto. इसीलिए साल भर इन 3 आयतों को क्लेम करना है, अपनाना है और एक मोटो की तरह इसे अपनाकर मोटिवेशन पाना है। So this evening we are going to very briefly see the Lord's purpose in giving this threefold motto for the year 2025. और अब हम क्या करेंगे, खुदा के कलाम में से हम मुख्तसरन देखते जाएंगे कि 2025 के लिए खुदा ने ये प्रॉमिसेस या वायदे क्यों दिए हैं। Already 2/3 of this year is over. 2/3 ऑफ ईयर मतलब तकरीबन 3 हिस्सों में 2/3 हिस्सा साल चला गया, गुजर 8 गया। months are over. 8 महीने चले गए। Less than 4 months are left for us. 4 महीने से भी कम वक्त हमारे साथ बचा है। At least now let us make this as our motto. कम से कम अब हम इन वायदों को हमारा मोटो बनाकर रहेंगे Claim them as our promise और इन आयतों को हमारे प्रॉमिस बनाकर हम इनको अपनाएंगे and experience the fulfillment of these promises. और इन वायदों में, खुदा के इन वादों में जो बातें हैं वो अपना कर हम खुदा के सामने रखेंगे। The first promise, पहला वादा we है, read it from 3 John and verse 2. हमने पढ़ा है यूहन्ना का 3रा खत बाब नंबर 2 से। Last part of that verse, इस आयत के आखिरी हिस्से से it says, that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे, Even as thy soul prospereth. यहाँ लिखा हुआ है जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा And the है। second promise, और दूसरा वायदा है found that in Psalm 1 मज़ामिर की किताब बाब नंबर 1 and verse 3. और आयत नंबर 3, Last part of that verse, आखिरी हिस्से में
whatsoever he doeth shall prosper. जो कुछ वो करे बार बार होगा। And the third promise, और तीसरा वायदा we found that in book of Nehemiah and chapter 2 नहम्याह की किताब बाब नंबर 2 and verse 20. और आयत नंबर 20 In the middle of the verse we read, और उसके बीच में हम पढ़ते हैं, the God of heaven, he will prosper us, आसमान का खुदा वही हमको कामयाब करेगा। and we will arise and build. इसी सबब से हम जो उसके बंदे हैं उठ कर तामीर करेंगे। What is one word that is repeated in all these three इन promises? 3 वायदों में जो एक लफ्ज बार बार आ रहा है वो क्या है? Huh? Prosper कामयाब करना or prosperity या कामयाबी or prosperous. या कामयाब होना। We need to be very careful देखिए हमें जरा यहाँ एहतियात बरतना है, because the word of God warns us about false teachers in the last days. क्योंकि खुदा के कलाम हमें बताता है कि आखिरी दिनों में कुछ बदगोई बोलने वाले, कलाम को खराब करके बोलने वाले बंदे आएंगे। What do these false teachers do? और ये फॉल्स टीचर्स जिन्हें कहते हैं वो लोग क्या करते They give हैं? you false promises, वो लोग आपको फॉल्स प्रॉमिस, झूठे वायदे देते हैं false pictures. और झूठी तस्वीर दिखाते They हैं। are those who give us false doctrine, और- wrong doctrine. और वो लोग झूठी तालीम भी हमें देते हैं। Nowadays we hear and notice what is called as prosperity theory. आजकल हम देख रहे हैं ना, यीशुयत में हम ये देखते हैं कि प्रॉस्पेरिटी थ्योरी आ गया है, Because the word prosper or prosperity pleases the ears. क्योंकि प्रॉस्पेरिटी या कामयाबी या बार बार होना ऐसी बातें सुनने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं। They say, come to the house of God regularly without fail, and God will make you वो लोग prosperous. कहते हैं कि आप लोग खुदा के घर में लगातार आते रहें और खुदा आपको बहुत कामयाब बना देगा। So that word prosper attracts us. तो ये कामयाबी का लफ्ज जो है वो लोगों को अपने अपने पास खींच लेता So है। we need to be very careful, dearly beloved. अजीजों, इसीलिए हमें बहुत एहतियात से रहना है। This is not such a prosperity belonging to the prosperity theory preachers. ये प्रॉस्पेरिटी या कामयाबी जो है यहाँ जो कलाम में लिखा हुआ है, ये कामयाबी वो लोग जो कामयाबी कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी टीचर्स जो झूठी तालीम देने वाले, उनकी कामयाबी नहीं है। These three verses, the spiritual prosperity is mentioned. इन 3 आयतों में रूहानी तरक्की के बारे में लिखा गया And there है are three kinds of prosperity. और यहाँ पे 3 तरह की कामयाबी के बारे में लिखा गया है। John, 3rd John and verse 2. हम पहले देखेंगे, पहला हम वापस जाएंगे, तीसरा John. यूहन्ना का तीसरा खत बाब नंबर 2 पढ़ेंगे। Even as thy soul prospereth. लिखा हुआ है जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है। Speaks about prosperity of the soul. यहाँ पे लिखा हुआ है रूहानी तरक्की मतलब अपनी रूह Not, जिस तरह की तरक्की पा रही not है, financial prosperity. मतलब मालवार होने की बात नहीं है यहाँ पे, The soul must prosper. मालदार होने की बात नहीं, बल्कि आपकी रूह जो है उसको तरक्की पकड़नी है। The Lord is concerned about our soul. खुदा चाहता है कि हमारी रूह जो है वो बरकरार रहे। Our soul must keep on prospering. That is the Lord's desire. खुदा की चाहत यह है कि हमारी रूह जो है वो हमेशा तरक्की पाती रहे। And in the second promise, और दूसरे वायदे in में Psalm 1 and verse 3, मज़ामीर की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 3 it में speaks about personal or individual prosperity. वहां पे इनफरादी तौर पर जो तरक्की होती है उसके बारे में लिखा गया है। Whatsoever he doeth shall prosper. जो कुछ वो करे बार बार या कामयाब होगा। We will see who that person is. वो इंसान कौन है, किस कदर का इंसान है, हम जरा And देखेंगे। then thirdly, और तीसरी in the बात, book of Nehemiah chapter 2 and verse 20, नहम्याह की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 20 में speaks about prosperity in the work of the Lord. यहाँ पे खुदा के काम में जो कामयाबी हासिल होती है उसके बारे में लिखा हुआ है। There Nehemiah says, यहाँ पे नहम्याह कहता है, the God of heaven, he will prosper us. आसमान का खुदा वही हमको कामयाब करेगा। Therefore, we as his servants will arise and build. इसी सबब से हम जो उसके बंदे हैं उठकर तामीर करेंगे। Speaks about the work of the Lord. यहाँ खुदा के काम के बारे में लिखा गया है। Lord has been desirous, he's desirous
of the prosperity of our soul, first of all. यहाँ पे खुदा हमारी जाने जो हैं उनकी तरक्की के बारे में पहले बात कहता है। Secondly, he desires our individual spiritual prosperity. दूसरी बात वो ये कह रहा है कि हम इनफिरादी तौर पर पर्सनली हम तरक्की पाएं। Thirdly, prosperity in the Lord's work or corporate prosperity. यहाँ पे तीसरा वायदा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम सब लोग मिलकर तरक्की करें। Now coming back to 3 John and verse 2. अब हम फिर वापस आएंगे यूहन्ना का तीसरा खत बाब नंबर 1 और आयत नंबर 2 John पढ़ेंगे। is mentioning about Gaius and is giving a testimony about him. यहाँ पे यूहन्ना जो हैं वो गायुस के बारे में बात करते हुए गवाही दे रहे हैं And is giving him an advice. और यहाँ पे एक नसीहत दे रहे He is हैं expressing a desire or ये- making a prayer for him. और उसके लिए एक दुआ मांगते हैं और एक चाहत जाहिर कर रहे हैं। It appears Gaius was not so well physically. यहाँ ऐसा लगता है कि शायद ये गायुस जो है ये जिस्मानी तरीके से इतना ताकतवर नहीं है, And that is why he says, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ I है want thy health to be in prosperity. वो कहते हैं मैं चाहता हूं कि तू जिस्मानी तरीके से तंदुरुस्त रहे। You must prosper in your health, physical health. हाँ, जिस्मानी तरीके से मतलब तेरी सेहत में तू तंदुरुस्त रह। He was becoming physically weak. तू शायद जिस्मानी तरीके से बदन में कमजोर हो रहा And है, how he should prosper and become strong? लेकिन तुझे किस तरीके से और तरक्की करते हुए तंदुरुस्त या मजबूत बनना है। He's making a comparison here. यहाँ पे एक कंपैरिजन कर रहा है। He says, even as your soul is वो prospering. दिखा रहा है कि जिस तरीके से तू रूहानी तरक्की पर कर रहा है। How was his soul prospering? That is very important. यहाँ पे अहम बात ये होती है कि उसकी जान या उसकी रूह जो है वो किस तरीके से तरक्की पा रही है। And that is how we also can prosper और- in our spiritual life. और जब individually. हम ये बातें जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम भी अपनी रूहानी जिंदगी में किस तरीके से तरक्की पा सकेंगे। The first thing, how his soul prospered, यहाँ पे पहली बात हम ये देखते हैं कि उसकी रूह किस तरीके से तरक्की पाती है। in verse 3. कैसे? पहली बात तीसरी आयत में लिखी हुई Says, है। For I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरी उस सच्चाई की गवाही दी जिस पर तू हकीकत में चलता है तो मैं निहायत खुश हुआ। Two evidences of his soul prosperity is given here. उसकी रूहानी तरक्की को लेकर दो गवाहियां या दलील यहाँ दी गई हैं। First of all, the truth that was in him. पहली बात यह है कि जो सच्चाई उसमें है। What is this truth? ये सच्चाई क्या है? Truth speaks about our Lord himself. सच्चाई क्या है? सच्चाई हमारे खुदावंद यीशुआ खुद हैं। Because the Lord says, I am the way, the truth and the life. क्योंकि खुदावंद यीशुआ ने कहा कि मैं ही हक या सच्चाई और राह और जिंदगी हूँ। So for the prosperity of the soul, the Lord must indwell in us. तो हमारी रूहानी तरक्की के लिए क्या होना चाहिए? हमारे खुदावंद को हमारे अंदर बसना जरूरी है। Then secondly, और दूसरी the बात, truth also speaks about the word of God. ये यहाँ पे सच्चाई जो लिखी गई है लफ्ज, इसका मतलब ये भी है हाँ। कि खुदा का कलाम है जो सच्चा है। The word of God must abide in our lives. खुदा का कलाम कहाँ रहना है? हमारी जिंदगियों में अंदर रहना है। We know in the scriptures many who had the word of God in their lives, abiding in their lives. हम देखते हैं कलाम में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जिक्र किया गया कि उनके अंदर खुदा का कलाम या सच्चाई मौजूद है। If you have to prosper spiritually, अगर आपको रूहानी तरक्की पानी है the Lord must be there. तो खुदावंद आपके साथ रहना है। The word of God must be there. खुदा का कलाम को भी आपके साथ रहना है। And the second thing we note in Gaius is, और गाइस में दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है, the same verse 3 we read, यहीं पे तीसरी आयत में लिखा हुआ that he है was walking in the truth. कि वो हकीकत में चलता है। What is the meaning of that? इसका मतलब क्या है? He was walking in such a manner
that the God who is truth, he was pleased by his walk. वो इस कदर चल रहा है कि जो खुदा उसमें है, उसके साथ उसमें है, वो उसके चाल चलन को देखकर बहुत खुश है। How is our walk today? हमारा चाल चलन कैसा है? Is our walk pleasing to the Lord? क्या आज हमारा चाल चलन खुदा के सामने उसको खुशी लाती है? My walk may please people, मेरा चाल जो है वो लोगों को बहुत अच्छा लग सकता but it है, may displease the Lord. लेकिन खुदा को वो नाखुश कर सकता है। How is my walk and your walk in the sight of the Lord? खुदा की नजरों निगाह में मेरी और आपकी चाल चलन कैसा है? Is the Lord pleased with our walk? क्या हमारे चाल चलन से खुदा खुश है? Are we accountable in our walk before the Lord? क्या खुदा के सामने हमारे चाल चलन को लेकर हमें हिसाब देना है करके हमें याद है? And then secondly, और दूसरी we बात, should also walk according to truth that is there in the word of खुदा God. के कलाम में जो सच्चाई बताई गई है इसके मुताबिक भी हमें चलनी है। What does it mean? इसका मतलब क्या है? It's about not only readers and hearers of the word of God, but followers and doers of the word of इसका God. मतलब ये होता है कि खुदा के कलाम को सिर्फ सुनने वाले और उसको याद रखने वाले, सुनने वाले ही नहीं बल्कि उसे याद रखकर उसके मुताबिक जीने या चलने वाले हमें बनना चाहिए। Preaching is very easy for me. बोलना, पैगाम करना, सुनाना मेरे लिए बहुत आसान है, Practicing and walking in what I preached is very, very challenging and difficult. लेकिन जो मैं बातें यहाँ से बताता हूँ या बोलता हूँ उनके मुताबिक चलना, जीना बहुत मुश्किल हो सकता है। So this is the second thing we find in Gaius. तो गायुस में हम ये दूसरी बात देखते हैं, Why truth was in him, उसमें तो हकीकत या सच्चाई थी and the truth helped him in his walk. और वो सच्चाई जो है उसकी जिंदगी में, उसके चाल चलन में मदद करती थी। And the third thing we find in verse 5. और तीसरी बात गायुस के बारे में हम 5वीं आयत में पढ़ते हैं। John says, Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest. यूहन्ना कहता है, ए प्यारे, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेसी भी हैं, वो दियानत से करता है। Also notice one word here is calling him as beloved. यहाँ पे वो लफ्ज देखिए कि यूहन्ना उसे प्यारे करके बुलाता है। And in verse 1 also he says, यहाँ पे आयत नंबर 1 में भी हम देख सकते the हैं, elder unto the well-beloved Gaius. मुझे बुजुर्ग की तरफ से उस प्यारे गाइस के नाम करके लिखते हैं। So he was beloved, loved by all, loved by the man of God John. इसका मतलब क्या होता है कि खुदा का बंदा यूहन्ना जो है उससे गायुस प्यार पाता है या उसका प्यारा है। And then verse 5 is giving this testimony. और 5वीं आयत में वो ये गवाही दे रहा है। What does he say here? क्या कहता है यहाँ He पे? doesn't say, in most of the things I found you to be faithful. हाँ, मैं जो कुछ मैं पाता हूँ तेरे बारे में वो दियानत से है। He doesn't say that most of the things. वो ये नहीं कहता कि बहुत सारी बातें। He says, thou doest faithfully whatever you are doing. हाँ, वो कहता है कि तू जो कुछ करता है वो दीनतदारी से तू करता है। Some big matters we may be faithful to the Lord. हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बातों में हम दीनतदारी दिखाते हैं, The small and minor things we may not be faithful. लेकिन छोटी मोटी बातें जो होती हैं उनमें दीनतदारी नहीं दिखाते। What is my attitude? मेरा रवैया कैसा है? परवाना ये छोटी सी बात है. जाने देना, ये छोटी सी बात है। No. ना ना ना, We are accountable to the Lord in the small things and the greater things. खुदा के सामने छोटी बातें हो या बड़ी बातें हो, दोनों को लेकर खुदा के सामने हमें हिसाब देना पड़ता है। Gaius was a servant of the Lord. गाइस कौन है? खुदा का बंदा है। He was actively working for the Lord. वो बहुत सरगर्मी से खुदा के लिए काम करता रहता था। How was he working and laboring for the Lord? खुदा के लिए किस तरीके से वो काम करते रहता था? Faithfully in whatever he was doing. वो जो कुछ करता था दीनतदारी से करता था। Will the Lord give the testimony about me? क्या खुदावंद मेरे बारे में भी इस तरह की गवाही दे सकता है? Otherwise, अगर नहीं देता I'm deceiving myself first of all and others. तो पहली बात यह है कि मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं और दूसरों को भी धोखे में डाल रहा हूं। And particularly, और उसके बाद this faithfulness is not only to the brethren, believers, even to the strangers. ये दीनतदारी की जिंदगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशुई मोमिनों के साथ नहीं बल्कि जो परदेसी आते हैं उनके साथ भी वो दीनतदारी की जिंदगी दिखा रहा है। What does it mean?
इसका मतलब क्या है? I'm not only faithful to be found faithful in Jehovah Shammah. इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ यहोवा शम्मा में ही मुझे दीनतदारी से पेश आना नहीं है, I'm found faithful towards strangers. बल्कि जो परदेसी हों या अनजान लोग बाहर जो हैं उनके सामने भी मुझे दीनतदारी से पेश आनी है। Among my neighborhood, जो मेरे इर्द गिर्द के लोग होते हैं and among my co-workers, I have to be faithful. और मेरे दफ्तर में मेरे साथ काम करने वालों के सामने भी मुझे दीनतदारी से पेश आनी है। What does testimony or our colleagues and neighbors are giving to us हमारे about us? हमारे बारे में हमारे पड़ोसी लोग और जो हम जहाँ काम करते हैं वहाँ के लोग किस तरह की गवाही या दलील देते हैं। And then another thing, thirdly, we see in verse 6. और आयत नंबर 6 में हम और एक बात देखते हैं। The brethren and strangers bore witness of his charity. यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा के लोग और जो परदेसी लोग हैं दोनों इस गायुस की मोहब्बत की गवाही दे रहे हैं। Verse 6 is joining with verse 5. 5वीं आयत के साथ आयत नंबर 6 को भी जोड़कर पढ़ना है। He says, "Thou doest to the brethren what thou doest to the brethren and to strangers, which have borne witness of thy charity." जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेसी भी हैं, वो दियानत से करता है। उन्होंने इक्लीसिया के सामने तेरी मोहब्बत की गवाही दी थी। क्या गवाही they gave? क्या गवाही दी थी उन्होंने? Of his charity or love in the church. उसकी मोहब्बत या और दियानतदारी के बारे में उन्होंने गवाही दी थी। The church could notice his love. हाँ, इक्लीसिया ने, चर्च ने देखा उसकी मोहब्बत कितनी बड़ी। Love towards fellow believers. हम मोमिनों के साथ वो मोहब्बत से पेश आता था। Love towards the people of God. खुदा के लोगों के साथ प्यार से पेश आता था। Love towards the work of God. और खुदा के काम में प्यार से वो काम करता था। So that was the testimony of this man. और इस इंसान की गवाही इस कदर की है। That is how his soul was prospering. इस तरीके से वो रूहानी तरक्की अंदर ही अंदर पा रहा था। 2/3 of this year is over. इस साल का 2 हिस्से खत्म हो गए। At least in the remaining less than 4 months. और बाकी 4 महीने जो बचे हैं, So may we do what we could find in Gaius. गायुस में जो हम पाते हैं उस तरह हम जी कर दिखाएं। Truth was in him. उसमें सच्चाई थी। He was walking in the truth. वो सच्चाई में चल रहा था। And whatever he did, he was faithful. और जो कुछ वो करता था वो सच्चा और दीनतदार रहता था। And also his charity was witnessed and manifested in the church. और उसकी मोहब्बत सबों को दिखती थी और चर्च में दिखती थी। This is the way in which we can prosper in our soul. इस तरीके से हम हमारे अंदर ही हमारी रूहों में रूहानी तरक्की पा सकते हैं। May the Lord make it so. खुदा ऐसा ही हमारे साथ करे। Now we come to quickly to the second promise. अब हम दूसरा वायदा जो है यहाँ आते हैं। Psalm 1 मज़ामिर की किताब बाब नंबर 1 and verse 3. और आयत नंबर 3, Here last part. आखिरी हिस्सा। Here also we find a similar word. यहाँ पे भी हम इसी तरह का लफ्ज हम देखते हैं। Whatsoever he doeth shall prosper. जो कुछ वो करे बार बार होगा। About whom is it said? किसके बारे में ये बताया गया है? The answer we find in verse 1. आयत नंबर 1 में इसका जवाब पाते हैं। This is found in a blessed man. ये एक मुबारक इंसान जो होता है उसकी जिंदगी में ये बात होती है। The man who is blessed by God. वो इंसान जो खुदा से बरकत पाता है। Whatever he does, there will be prosperity in it. जो कुछ वो करेगा उसकी जिंदगी में वो बार बार या कामयाब होगा। Individual prosperity. इनफिरादी तौर पर तरक्की। How is it possible? ये कैसे मुमकिन है? Again, there are some conditions here. यहाँ पे हम कुछ शर्त पाते हैं। We see them in verse 1 and also verse 2. पहली आयत और दूसरी आयत में इन बातों को हम देखते हैं। What do we read there? यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? Verse 1. पहली आयत We में see this blessed man or the man of God or a righteous man not doing 3 things. यहाँ पे ये सादिक इंसान जो है, ये रास्तबाज इंसान जो है, खुदा का बंदा जो है, 3 काम नहीं करते हुए हम देखते हैं। And secondly, और दूसरी in बात, verse 2, आयत नंबर 2 में 2 important things he does. वो 2 खास या अहम काम
करता भी है। 3 things he does not do, 3 काम करता नहीं है, 2 things he does always. 2 काम वो करता हमेशा है। We know that. हम इन बातों से वाकिफ हैं। What is that? What are they? वो बातें क्या हैं? First of all, अव्वल there is something mentioned about his walk. पहली बात यह है कि उसके चाल चलन के बारे में कुछ कहा गया है। Secondly, about his halt or standing. और दूसरी बात उसके खड़े होने के बारे में कुछ कहा गया है। And thirdly, about where and how he sits. और तीसरी बात वो जहां बैठता है उसके बारे में कुछ कहा गया है। You know these 3 things. इन 3 बातों को हम जानते हैं। First of all, पहली बात, this man, a blessed man ये मुबारक who prospers in his life, he does not walk in the counsel of the ungodly. ये मुबारक इंसान जो है, जो अपनी जिंदगी में तरक्की पाता है, वो कभी भी शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। Notice the word counsel. देखें, सलाह का लफ्ज जो है उसे देखें। What is this counsel? ये सलाह क्या होता है? It is an ungodly counsel. ये सलाह क्या होती है? ये खुदा के खिलाफ या खुदा के डर नहीं मानने वाले लोगों की सलाह है। There are many counselors in this world. इस दुनिया में सलाह देने वाले तो बहुत सारे लोग They are हैं। called by another word called as consultants. उनको कंसल्टेंट्स करके भी कहा जाता है। For getting job, they will consult you, give you counsel. मतलब आपको कुछ अगर काम पे लगना है, जॉब के लिए जाना है, तो उसके बारे में कंसल्टेंट्स के पास जाना है। They will counsel you for your education. और वो लोग आपको अपनी पढ़ाई के बारे में भी वो लोग सलाह They will देते counsel हैं। you even to get how to get your promotion. आपको प्रमोशन कैसा पाना है उसके बारे में आपको सलाह देते They हैं। will counsel you how to conduct business. और बिजनेस या तिजारत कैसे करें उसके बारे में भी वो लोग सलाह देते हैं। And they charge quite a heavy fee also. और बहुत रकम भी वसूल करते हैं। But what sort of counselors they are? लेकिन वो लोग किस तरह के सलाहकार हैं? Ungodly counselors. वो लोग खुदा का खौफ नहीं मानने वाले There is no सलाहकार हैं। there is no God in their counsel. उनकी सलाह में खुदा मौजूद नहीं रहता। We were ungodly in the past. हाँ, We were ungodly in the past. हम लोग जो हैं, हम भी इससे पहले माजी में खुदा से दूर थे, नाराज थे। When we accepted Christ as our Savior, लेकिन जब हमने खुदावंद यीशु को हमारे नजर दहिंदा जब माना, God has come into our lives. खुदा ने हमारी जिंदगियों में खुदा आ गया। We were without God, without salvation, without hope, and without peace. इस दुनिया में हम खुदा के बगैर, नजात के बगैर, इत्मीनान के बगैर रहते थे। But now, लेकिन अब God has come into our lives. खुदा हमारी जिंदगियों में दाखिल हो गया है। Godhead has come bodily into our lives. खुदा हमारे अंदर अपने रूह के जरिए से आ गया है। All the blessings of the Godhead have come unto us. खुदा की जो भी बरकतें हैं वो सब की सब हमारी हो गई हैं। So what does a blessed man do? तो एक मुबारक इंसान क्या करेगा? Whatever he does, he will do with godly counsel. जो कुछ वो करेगा वो खुदा की इलाही सलाह के मुताबिक करेगा। So the counsel of the ungodly is what we have to be careful about. तो इसीलिए हमें बहुत एहतियात से रहना है कि खताकारों या नारास्तों की सलाह पर हम ना चलें। How are we walking today? आजकल हम कैसे चल रहे हैं? Is it a godly as a result of godly counsel or ungodly counsel? क्या हम खुदा की सलाह के मुताबिक या इलाही सलाह के मुताबिक चल रहे हैं या नहीं? Another word in some translation they use is wicked counsel. और कुछ तर्जुमाओं ने लोगों ने बहुत बुरे लोग करके, विकेट करके, बुरे लोगों की सलाह करके तर्जुमा किए हैं। To live in this world is a great challenge, dearly beloved, for a believer. अजीजों, एक यीशु मोमिन के लिए इस दुनिया में जीना बहुत बड़ा सवाल है। Every step we have to take is very difficult in this world. कदम जो हम लेते हैं इस दुनिया में बहुत मुश्किल से लेना पड़ता है। But to make things very easy, ungodly counsel, wicked counsel is freely available to us. लेकिन इस दुनिया में हमारी बातों को, चीजों को बहुत आसान बनाने के लिए इस दुनिया में तो खुदा के बगैर सलाह देने वाले, खुदा का खौफ नहीं मानने वाले जो होते हैं उनकी सलाहें मौजूद हैं। It is in abundance. बहुत कसरत से उनकी सलाह मौजूद हैं। But what are we doing? आज हम क्या कर रहे हैं? Are we refusing that ungodly counsel? क्या खुदा से बगैर खुदा की जो सलाह लोग देते हैं उसे हम दूर कर रहे हैं? Are we attracted by such ungodly
ungodly counsel? या उस तरह की नाराज सलाहों से हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, Are we yielding to that ungodly counsel? या उन लोगों की जो नाराज सलाह जो होती है उसके मातहत हम हो जा रहे हैं, Or are we being pressurized by that ungodly counsel? या उस नाराज सलाह के दबाव में हम आ रहे हैं? What is the remedy? लेकिन इसका जवाब क्या है? We have to look to the Lord. खुदावंद को तकना, उनको देखना। He will give us the strength to prevail over ungodly counsel. नाराज सलाहों पर गालिब आने के लिए खुदावंद ही हमें ताकत बख्शेंगे। Then secondly, दूसरी बात, this blessed man, righteous man, the one who wants to prosper, he will not stand in the way of sinners. ये मुबारक इंसान जो है, ये जो तरक्की रूहानी तरीके से पाना चाहता है, वो कभी भी खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। Speaks about our fellowship with sinners. यहाँ पे खताकारों के साथ हमारी रिफाकत जो होती है उसके बारे में जिक्र किया We गया। cannot have fellowship with the sinners at all, people of the world. इस दुनिया में जो खताकार होते हैं उनके साथ हमें रिफाकत में कतई बिल्कुल नहीं रहनी है। In David's time also he had many such people. हम देखते हैं कि दावीद के अय्याम में भी वो भी बहुत सारे इस तरह के खताकारों के बारे में बात करता था। But what was David's attitude? लेकिन दावीद का रवैया किस तरह रहता था? Psalm 16, देखें मज़ामीर की किताब बाब नंबर 16 verse 3. और आयत नंबर 3। But to the saints that are in the earth and to the excellent, in whom is all my delight. जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगुजीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। He delighted only in the people of God. सिर्फ और सिर्फ खुदा के लोगों के साथ उसकी खुशनुदी है। In the Telugu language, this verse is very well written. तेलुगु में ये वर्स जो है, आयत जो है, बहुत हसीन तरीके से लिखी गई है। It says they are my Ishtulu and Shrestulu. वो ऐसा लिखा हुआ है कि वो लोग मेरे लिए खास हैं, अजीम हैं और प्यारे हैं। Who are you? Who are such people in your life? आपकी जिंदगी में आपके प्यारे और आपके खास कौन हैं? Is it the people of the world क्या दुनिया के लोग हैं or the children of God? या खुदा के बच्चे हैं? And then thirdly, तीसरी बात, Psalm 1 and verse 1, मज़ामीर की किताब 1:1, they do not sit in the seat of the ये scornful. मुबारक इंसान जो है वो ठट्टाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। Sitting speaks about resting yourself, बैठता मतलब ये है कि आप वहां जाकर आराम नहीं करते। becoming you are able to accommodate the scornful people or the people of the world. इसका मतलब ये भी है कि इस दुनिया के टट्टेबाजों को अपने साथ मेल मिलाप में नहीं रख सकते। Becoming one with them, उनके साथ जुड़ जाना, oneness with them, fellowship with them. उनके साथ जुड़कर मेल मिलाप में जाकर रिफाकत और शिराकत रखना। If your soul has to prosper, अगर आप रूहानी तरक्की चाहते हैं be away from such scornful people. तो उस तरह के ठट्टेबाजों से दूर रहना। We should be careful about our whose counsel we are taking. जी, हमें एहतियात बरतना यहाँ जरूरी है कि हम किसकी सलाह लेते हैं And with whom we are having fellowship, और किसके साथ हम ये रिफाकत रखते हैं, with whom we are developing our association and friendship. और हमारा पहचान जो है, पहचानत जो है, किसके साथ हम निभा रहे हैं या तरक्की कर रहे हैं। And two things this man who prospers in his soul does. अब हम ये दो बातें देखेंगे जो ये रूहानी तरक्की पाने वाला इंसान करता है। His delight is in the law of the Lord. उसकी खुशनुदी खुदा की तौरात में है। The word of God alone is his pleasure and joy. खुदा का कलाम जो है उसी में हमेशा उसकी खुशनुदी होती है। He simply delights, rejoices in the word of God. खुदा का कलाम सुनते ही, यहोवा का कलाम सुनते ही वो बहुत खुश होते जाता है। Hyderabad is famous for biryani. हाँ, हैदराबाद तो बिरयानी के लिए मशहूर है। We all delight in the biryani. हम सब बिरयानी खाकर मस्त होते हैं। How do we delight in that biryani? बिरयानी खाकर कैसे मस्त होते हैं? First of all, पहली बात, before the biryani comes to us, बिरयानी हमारे पास लाए जाने से पहले ही you delight through your nose. उसकी खुशबू सूंघ कर खुश होते हैं। Secondly, दूसरी बात, you delight through your eyes. और आंखों से देख कर खुश हो जाते हैं। Thirdly, तीसरी बात, you delight through your mouth and tongue. और जायका लेकर खुश होते हैं। That is the actual meaning of delight. ये है खुशनुदी का मतलब।
The Bible must be more than a biryani for us. खुदा का कलाम बाइबल जो है हमारे वास्ते बिरयानी से भी बढ़कर होना The है। more you delight in this Bible, आप कितना ही खुदा के कलाम में खुशनुदी पाते जाएंगे, the more you will prosper in your life, dearly beloved. उतना ही आपकी रूहानी जिंदगी में आप लोग प्यारो आप तरक्की पाएंगे। And then secondly, और दूसरी बात, the man whose soul prospers, he meditates on the word of God day and night. और जो खुदा का बंदा रूहानी तरक्की पाना चाहता है वो दिन रात खुदा की तोरा या कलाम पर ध्यान करता है। Meditates on the word of God. खुदा का कलाम का ध्यान करता है, Not for just 15 minutes, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए नहीं, not half an hour, आधे घंटे के लिए नहीं, not few hours. या चंद घंटों के लिए नहीं। Whenever he finds time, he reads the word of God and delights in the word of God. जब भी उसे वक्त मिले खुदा का कलाम पकड़ेगा और उसमें से पढ़कर खुशी पाएगा And he meditates on the word of God. और खुदा के कलाम का ध्यान जरूर करेगा। What is the meaning of that? उसका मतलब क्या होता है? Searching the scriptures. खुदा के कलाम को ढूंढना, जांचना। We thank God for the Bibles we have these days. अजीजों, आजकल जो हमारे हाथों में जो बाइबल है, इस बाइबल को लेकर खुदा का बहुत शुक्र है। Reference Bibles are there. हमारे दरमियान हमारे हाथों में आज रेफरेंस बाइबल्स हैं। Bibles with concordance is there. बाइबल्स तो कॉन्कॉर्डेंस के साथ भी हैं। So we can take those verses and keep on meditating on the word of तो God. हम उन आयतों को हम लेकर पढ़कर खुशी हमेशा पा सकते हैं। Then when you do this, ऐसा जब हम करेंगे, unknown to you, your soul keeps on prospering. हम जानते नहीं लेकिन अनजाने में ही हमारी रूह जो है वो रूहानी तरक्की पाती जाती है। And what is the result of that? तो इसका अंजाम क्या होगा? Whatever comes out of your mouth, आपके मुंह से जो भी बाहर निकलेगा, whatever you do, handle with your hands, आपके हाथों से जो भी आप काम करने लगेंगे, wherever you go, आप जहां भी जाएंगे, whatever work you do, आप जो भी करेंगे काम, they will see prosperity in you, आप में वो लोग क्या पाएंगे? तरक्की पाएंगे and you will be a source of prosperity, spiritual prosperity for others. और दूसरों की जिंदगी में भी उनके लिए रूहानी तरक्की लाने वाले बनेंगे। That's why the word of God says here, इसीलिए यहाँ पे खुदा का कलाम बताता है, whatsoever such person doeth, उस तरह का इंसान जो कुछ वो करे, his home, in his house, अपने घर में, the place of work, अपने दफ्तर में, the market, बाजार in में, the house of God, खुदा के घर में, wherever he goes, whatever he does, जहां भी वो जाए, जो भी वो करे, prosperity and prosperity. वो कामयाबी ही तरक्की ही पाएगा। May the Lord bring us into such an experience. खुदा हमें इस तरह के तजरिबे में दाखिल करे। In the light of the word of God, खुदा के कलाम के मुताबिक let us search our hearts. हम हमारी जिंदगियों को, हमारे कल्बों को हम परखें। Is our soul prospering today? क्या आज हमारी जान और तरक्की पा रही है या नहीं? Whatever we are doing, is it resulting in prosperity, spiritual prosperity? जो कुछ हम कर रहे हैं क्या वो रूहानी तरक्की दिला रहा है या नहीं? If that is not so, अगर ऐसा नहीं हो रहा we है also must be knowing the reason for that. तो हमें वजह पता करनी है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। As the Lord is speaking to you this evening, आज शाम को खुदावंद आपसे बातें कर रहा है। settle it between the Lord and you. खुदा के और आपके बीच में जो भी आया है उसे आप सेटल करें। Lord, I have a Christian name. आप खुदावंद से कहें, "ऐ खुदावंद, मुझे तो एक क्रिश्चियन नेम है, I नाम have been है, born into the family of God. मैं खुदा के लोगों के घर में पैदा I am हुआ, reading the word of God, खुदा का कलाम में पढ़ रहा हूँ, coming to the house of God, खुदा के घर में आ रहा हूँ, doing even work in the house of खुदा God. के घर में काम काज में मशगूल Maybe हूँ, like me preaching the word of God. या मैं कभी कलाम भी ऐसे दे रहा हूँ, But Lord, my soul is not prospering. लेकिन ऐ खुदावन मेरी रूह में तरक्की नहीं है। Others are not prospering because of me. मुझे लेकर मेरे जरिए से दूसरों की तरक्की नहीं हो रही। Whatever I am doing, there is no prosperity, there is only adversity. जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसमें तरक्की नहीं है, कामयाबी नहीं है, मैं नुकसान ही पा रहा हूँ। Lord, have mercy on me. इसीलिए ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, Forgive me, O Lord. खुदावंद मुझे माफ कर। There is any sin in me, मुझ में गुनाह है, any hidden sin, अगर आप में कुछ भी छुपा हुआ गुनाह है, secret sin, कुछ गुनाह जिसे आप राज बना कर रखे हैं, Lord, forgive me, wash me and cleanse me. खुदा के सामने कहना है, खुदावन मुझे माफ करें, मुझे धोकर नेको पाक करें। And then let us take part in the Lord's table. उसके बाद आकर खुदा की इस मेज में हाथ डालें। May the remainder of this year may be a year of
spiritual prosperity in your life. ताकि इस साल के बाकी बचे हुए महीने जो हैं वो सब के सब आपके लिए रूहानी तरक्की बख्शने वाले महीने बने। May the Lord help us. खुदावंद हमारी मदद फरमाए।